السلام علیکم دوستو، تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ لوگوں کو سیر کرواؤں گا براعظم یورپ میں واقع ایک نئے اور خوبصورت ترین مسلم ملک کی۔ اس ملک کے لوگوں کو دنیا کے مہمان نواز اور نہایت خوبصورت مانا جاتا ہے، اور یہاں کی لڑکیاں پاکستانی نوجوانوں کو دیکھ کر ان کے ہاتھ چومنا شروع کر دیتی ہیں۔ یہ ملک دنیا کا واحد ایسا ملک ہے جس کے 3 صدر ہیں، اور اسی ملک میں ایک پل بھی موجود ہے جہاں ورلڈ وار 1 شروع ہوئی تھی، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا کو لپیٹ لیا تھا۔ اس ملک میں 10 سال پہلے تک جنگ چلتی رہی، لیکن آج یہ ملک دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے جنت نما بن چکا ہے، اور یہاں کے لوگ پکنک منانے کے لیے بھی قبرستان جاتے ہیں۔ تو دوستو آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں یورپ میں واقع ایک مسلم ملک بوسنیا کی شاندار سیر پر۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ ہمارا یہ سفر محبت بھرا اور خوشگوار رہے۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں، اس کا آفیشیل نام بوسنیا اینڈ ہرزگوینیا ہے۔ بوسنیا اور ہرزگوینیا یورپ کا ایک نیا ملک ہے جو پہلے یوگوسلاویا میں شامل تھا۔ اس کے 2 حصے ہیں، ایک کو وفاق بوسنیا اور ہرزگوینیا کہتے ہیں اور دوسرے کا نام سرپسکا ہے۔ وفاق بوسنیا اور ہرزگوینیا اکثریت مسلمان ہیں، اور سرپسکا میں مسلمانوں کے علاوہ سربیان، کروشین اور دیگر اقوام بھی آباد ہیں۔ یہ علاقہ یورپ کے جنوب میں واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ تقریباً 51,209 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ رقبے کے لحاظ سے دنیا بھر میں 125ویں نمبر پر آتا ہے، اور اس کی کل آبادی تقریباً 34,34,000 ہے، اور یہ آبادی کے لحاظ سے بھی دنیا بھر میں 135ویں نمبر پر آتا ہے۔ اس کی 50% آبادی شہروں میں تو باقی کی 50% گاؤں میں ہی رہنا پسند کرتی ہے، اور فی مربع کلومیٹر پر تقریباً 178 افراد رہتے ہیں۔ 3 اطراف سے کروشیا کے ساتھ سرحد ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مغربی یورپی اقوام نے اس علاقے کو آزادی کے وقت اس بات کو یقینی بنایا کہ اسے ساحل سمندر نہ مل سکے، چنانچہ اس کے پاس صرف 26 کلومیٹر کی سمندری پٹی ہے، اور کسی بھی جنگ کی صورت میں بوسنیا اور ہرزگوینیا کو محصور کیا جا سکتا ہے۔ مشرق میں سربیا اور جنوب میں مونٹی نیگرو کے ساتھ سرحد بھی ملتی ہے۔ بوسنیا یورپ کا پہلا اکثریتی مسلم ملک ہے، جبکہ دوسرا نمبر کوسوو کا آتا ہے۔ بوسنیا کی 52% آبادی مسلمان ہے، 31% آرتھوڈوکس عیسائی، 15% رومن کیتھولک مذہب کے ماننے والے لوگ بھی آباد ہیں، جبکہ یہاں رہنے والے نسلی گروہوں کو اگر دیکھا جائے تو 51% مقامی بوسنین، 30.8% سربیان، 15.4% کروشین، جبکہ 3.7% دوسری نسلوں کے لوگ بھی آباد ہیں۔ اور یہاں سب سے زیادہ بولی جانے والی 3 زبانیں ہیں، اور یہ 3 زبانیں بوسنین، سربین اور کروشین ہیں، اور یہی تینوں بوسنیا کی قومی زبانوں کا درجہ بھی رکھتی ہیں۔ بوسنیا کا دارالحکومت سراجیوو ہے، اور یہی اس کا سب سے بڑا شہر اور بزنس ہب بھی ہے، اور صرف اسی ایک شہر میں 3 لاکھ افراد رہتے ہیں۔ یہاں 1984 کی سرمائی اولمپک کھیلوں کا انعقاد ہوا تھا، جب وہ یوگوسلاویا میں شامل تھا۔ یہ شہر بوسنیا کا دل مانا جاتا ہے، اور اس کی گلیوں میں صدیوں کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ سراجیوو کو یورپ کا یروشلم بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں مسلمان، عیسائی اور یہودی صدیوں سے ایک ساتھ رہتے آ رہے ہیں، اور 19ویں صدی میں یورپ کا پہلا اور دنیا کا دوسرا بڑا شہر بنا، جہاں پر فل ٹائم الیکٹرک ٹرام چلتی تھی۔ سراجیوو بوسنیا اور ہرزگوینیا کا سیاسی، مالی، سماجی اور ثقافتی مرکز، اور بلکان میں ثقافت کا ایک نمایاں مرکز بھی ہے۔ دوستو بوسنیا عثمانی طرز کی مسجدوں، آرتھوڈوکس اور کیتھولک کے گرجا گھروں اور یہودیوں کے سیناگوگ، 19ویں صدی کے آسٹرو ہنگرین طرز تعمیر اور قدرتی خوبصورتی کے ساتھ تمام نشانیاں اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں، اور اسی وجہ سے سیاحت کے شوقین لوگوں کے لیے بوسنیا کسی جنت سے کم نہیں ہے۔ اور اب تو یہ ملک سیاحت کے حوالے سے دنیا بھر میں 3رے نمبر پر شمار کیا جاتا ہے، اور ہر سال تقریباً 10 لاکھ کے قریب سیاح اس ملک کا رخ کرتے ہیں۔ یہاں کے لوگ بڑے بڑے شاپنگ مالز ہونے کے باوجود بھی روایتی بازاروں کا رخ کرتے ہیں، اور دوست احباب سیاحوں کے ساتھ ٹی ہاؤسز میں ہی آرام کرنا پسند کرتے ہیں، اور حقہ پینا تو لازمی جزو ہے ان کے کلچر میں۔ بوسنیا کا اکثر علاقہ سرسبز پہاڑوں پر مشتمل ہے، درختوں اور دریائے چشموں کی بہتات ہے۔ بوسنیا معدنی ذخائر سے بھی مالا مال ہے، جن میں کوئلہ، لوہا، تانبا، کرومائٹ اور نمک کے ذخائر وافر مقدار میں موجود ہیں۔ پانی بجلی بھی وافر مقدار میں پیدا کی جا رہی ہے۔ اہل بوسنیا کی کثیر تعداد ملازمت اور تجارت کے علاوہ ماہی گیری، مویشیوں کی پرورش اور زراعت کے پیشے سے وابستہ ہے۔ زمین کا کافی حصہ چراگاہوں پر مشتمل ہے۔ سارے ملک میں شہراہوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ ملک کے طول و عرض میں 2111 میل طویل ریل کی پٹڑی بھی موجود ہے، جو ملک کو ترکی اور یورپ کے دوسرے ممالک سے منسلک کرتی ہے۔ بوسنیا کا قلیل حصہ یعنی صرف 20 میل بحیرہ ایڈریاٹک سے ملتا ہے،
जिस पर बोस्निया की वाहिद बंदरगाह ड्रोबेंक तरक्की के इब्तदाई मराहिल में है। बहर एड्रियाटिक के दूसरे किनारे पर इटली का साहिल वाक़ है, जो ड्रोबेंक से सिर्फ 200 किलोमीटर के फासले पर है। बोस्निया के कुल रकबे में से 42% रकबा काबिल काश्त है और 42% इसी पर जंगलात भी हैं। ये मुल्क सेहत पर अपनी GDP का 9% खर्च करता है और मुल्क में 1000 मरीजों के लिए 3 डॉक्टर्स और 5 बेड्स दस्तयाब हैं और तालीम पर भी बहुत ज्यादा खर्च करता है और इसी वजह से इसका लिटरेसी रेट 99% तक पहुंच चुका है। और अगर हम आज इसके GDP की बात करें तो इसका कुल GDP तकरीबन 71.254 बिलियन डॉलर है और फीकस GDP $20,623 है। इसकी करेंसी को कन्वर्टेबल मार्क कहा जाता है। इनका एक मार्क पाकिस्तानी 158 रुपए, इंडियन 47 रुपए, जबकि बांग्लादेशी 67% के बराबर है। बोस्निया का शुमार यूरोप के सबसे सस्ते तरीन ममालिक में होता है और वहाँ खाने का खर्चा 200 से 250 के करीब आता है और रहने के लिए एक कमरा 1000 से 1500 रुपए में आसानी से मिल जाता है। बोस्नियन लड़कियों को दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियां होने का भी एजाज हासिल है और अक्सर लोग कहते हैं कि असल में यही लड़कियां ही कुए काफ की परियां हैं और यहाँ पाकिस्तानी लड़कों को जुनून की हद तक पसंद करती हैं। जहाँ भी पाकिस्तानी लड़का देखेंगी और उसी वक्त उसे शादी का पैगाम भेज देंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने उनकी आज़ादी में अहम किरदार अदा किया था। इसी वजह से यहाँ के तमाम लोग पाकिस्तानियों को देखकर उनके हाथ चूमना शुरू कर देते हैं और गले लगाकर रोना शुरू कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पाकिस्तानी फौज ने अमन मिशन में अपने बोस्नियाई मुसलमानों का वो साथ दिया जो बोस्निया की आने वाली कई नस्लें भूल भी नहीं पाएंगी। और पाकिस्तानी फौज अपने हिस्से का खाना बोस्नियाई पनाह गजीनों को दे दिया करते थे और फिर कहते थे कि हमें रोजा है और खुद भूखे रह जाया करते थे। और वहाँ की नौजवान लड़कियों की इज्जतें बचाने और बाकी तमाम लोगों की जिंदगियां बचाने में पाकिस्तानी फौज का अहम किरदार रहा है। इसी वजह से तो वो पाकिस्तानियों को प्यार से देखते हैं और बाकी यूरोपियन ममालिक में पाकिस्तानी होने पर लोग ताने देते हैं, मगर बोस्निया में लोग पाकिस्तानियों को देखकर जबरदस्ती घर ले जाते हैं और खाना खिलाते हैं। यहाँ की लड़कियां 27 साल की उम्र में शादियां करती हैं और मुसलमान शादी के लिए मसाजिद का रुख करते हैं और वहीं पर ही सब मेहमानों को बुलाया जाता है और मसाजिद में ही निकाह किया जाता है। सराजीवों की सकाफत में कब्रिस्तान एक अहम किरदार अदा करते हैं। शहर ने कब्रिस्तानों को अपनी रोजमर्रा की समाजी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लिया है। बोस्नियाई मुसलमान हमेशा से मौत के हवाले से खुला रवैया रखते आए हैं। ये भी तो जिंदगी का एक हिस्सा है, तो फिर इससे दूर भागना कैसा? कब्रिस्तान भी पब्लिक पास क्यों ना बने? सराजीवों के लोग जिंदगी से मोहब्बत करते हैं। शहर में होने वाली जबरदस्त तरक्की, जिसमें न सिर्फ नए शॉपिंग मराकज शामिल है बल्कि तारीखी मकामात की बहाली, गैलरियों और म्यूजियम्स का क़याम भी शामिल है, जो तरक्की की राहों पर चलने का वाज़े इशारा है। और आज बोस्निया का शुमार यूरोप के पुरअमन और महफूज तरीन ममालिक में किया जाता है और तबाहशुदा शहरों को दोबारा से खड़ा किया जा रहा है और मईशत जो ज़बूहाली का शिकार हो गई थी, अब उसे भी पर लगना शुरू हो चुके हैं। और बोस्निया का तर्ज हुकूमत दुनिया में सबसे अलग है। इस मुल्क में बोस्नियाई, सर्बियन, क्रोशियन नस्लों के लोग आबाद हैं। इसी बात के पेश नज़र वहाँ 3 सदर मुंतखब होते हैं और ये तीनों सदर अपनी अपनी नस्लों की नुमाइंदगी करते हैं। दोस्तों, बोस्निया एंड हर्ज़गोविना दुनिया के उन चंद ममालिक में से एक है जिनके नाम के सेंटर में एंड आता है और ये नाम पहली बार 10वीं सदी में इस्तेमाल किया गया था। और बोस्नियाई लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए दुनिया भर में मशहूर हैं। अगर आप किसी के घर जाएं तो वो आपको चाय या कॉफी के साथ खाना भी जरूर पेश करेंगे। बोस्निया में ये माना जाता है कि मेहमान खुदा की रहमत होता है और उसकी खिदमत करना बायसे फख्र समझा जाता है। बोस्निया में कॉफी का एक खास तरीका है जिसे बड़ी संजीदगी से लिया जाता है। बोस्नियाई कॉफी तुर्क कॉफी से मिलती जुलती है, लेकिन उसका पेश करने और पीने का तरीका एक मुनफरद रस्म है और पीने के दौरान गपशप करते हैं। बोस्निया और हर्ज़गोविना कॉफी के इस्तेमाल की रियासत से दुनिया में 10वें नंबर पर है। बोस्नियाई कॉफी बोस्नियाई शनाख्त का हिस्सा है। ये मुल्क की अलामत और उसकी रिवायत का भी हिस्सा है, लेकिन ये मकामी लोगों की खुश मजाज ज़हनियत की अक्कासी करता है। बोस्निया में खानदानी रवाबित इंतहाई अहमियत रखते हैं। लोग अपने खानदानों से बहुत करीब होते हैं और अक्सर पूरे खानदान एक साथ बड़े बड़े घरों में रहते हैं। बच्चों की तालीम और उनकी परवरिश में पूरा खानदान शरीक होता है। बोस्नियाई लोगों का एक और दिलचस्प पहलू ये है कि उनके सकाफती वर्षे में इस्लामी, ईसाई और उस्मानी असरात शामिल हैं। बोस्निया की रिवायती लिबास, रक्स और मौसीकी में ये तमाम मनासर झलकते हैं। बोस्निया का एक मशहूर खाना चवापी है, जो छोटे गोश्त के कबाब होते हैं। ये खाना बोस्नियाई कल्चर का एक अहम हिस्सा है और हर खास मौका पर दस्तरखान की जीनत बनता है।
बोस्निया में सरोगा नामी एक मकामी खेल खेला जाता है जो फुटबॉल और वॉलीबॉल का मिलाप होता है। ये खेल बोस्नियाई देहातों में आम है और इसके जरिए लोग अपने गाँव के दरमियान दोस्ताना मुकाबले करते हैं। बोस्निया की नई नस्ल अपने मुल्क की तरक्की में बहुत दिलचस्पी रखती है और वो जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल अक़वामी मौक़े से फायदा उठा रही है। यहाँ के नौजवानों में तालीम की शरह मुसलसल बढ़ रही है और वो दुनिया भर में बोस्निया की एक मुस्बत तस्वीर पेश कर रहे हैं। सराजेवो क्लॉक टावर एक तारीखी वर्सा है और इसे दुनिया की वाहिद अवामी घड़ी समझा जाता है जो लूनर टाइम की पैमाइश करती है। बोस्निया और हर्ज़गोविना वो मुल्क है जहाँ इटली, फ्रांस और जर्मनी के मुश्तरका आबशारों से भी ज्यादा आबशारें मौजूद हैं और ये आबशारें तकरीबन 200 से जायद हैं। बोस्निया के शहर विसोको में कुछ लोगों का दावा है कि यहाँ कदीम अहराम मौजूद हैं जो मिस्र के अहराम से भी कदीम हो सकते हैं। इन अहरामों को बोस्निया के अहराम कहा जाता है और कुछ आसार कदीमा के माहिरीन का मानना है कि ये कुदरती पहाड़ हैं, जबकि दूसरों का ख्याल है कि ये इंसानी हाथों से बनाए गए हैं। ये मौजू आज भी बहस का हिस्सा है और माहिरीन इस पर मजीद तहकीक भी कर रहे हैं। बोस्निया के मोस्टार शहर में वाक़ सटारी मोस ब्रिज बोस्निया की सबसे मशहूर निशानियों में से एक है। ये ब्रिज उस्मानी दौर में तामीर किया गया था और इसे दोबारा 2004 में तामीर किया गया। यहाँ एक दिलचस्प रिवायत है कि नौजवान मर्द पुल से नीचे दरिया में छलांग लगाते हैं, जिसे बहादुरी और मर्दानगी की अलावा समझा जाता है। इस मुकाबले को मोस्टार डाइविंग कंपटीशन कहा जाता है और हर साल यहाँ सियाह इस दिलचस्प इवेंट का हिस्सा बनते हैं। सराजेवो हाइकर्स और ट्रैकर्स के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। इस शहर में घूमने के मकामात, हाइकिंग के लिए पहाड़ियों या एडवेंचर्स की जगहों की कोई कमी नहीं है। शहर में खुद को खो देने में भी कोई मसला नहीं है। मकामी लोग काफी मिलनसार और दोस्ताना मजाज रखते हैं और आपको रास्ता बताने में हमेशा मदद करते हैं। आपको ये भी बताता चलूं कि यहाँ खाना काफी ज्यादा तादाद में पेश किया जाता है। थोड़ा सा सलाद भी छोटी दावत के बराबर होता है। बोस्निया का नाम इंडो जर्मनी लफ्ज बोसाना से आया है जिसका मतलब पानी है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है क्योंकि ये मुल्क खूबसूरत नदियों, झीलों और आबशारों से माला माल है। दोस्तों, बोस्निया में इस्लाम की आमद 15वीं सदी ईस्वी में हुई। सुल्तान मोहम्मद फातेह 30 मार्च 1432 से 3 मई 1481 तक बोस्निया को फतह किया और ये इलाका खिलाफत उस्मानिया का हिस्सा बना और मुसलमानों ने वहाँ इस्लाम की तबलीग शुरू की। इन लोगों में मुसलमान फौजी और ताजर नुमाया थे। बोस्निया में खिलाफत उस्मानिया की मुस्बत पॉलिसियों ने बोस्निया को माशी, दिफाई और सियासी तौर पर मजबूत किया। खिलाफत उस्मानिया में मुसलमानों के साथ साथ दूसरे मज़ाहिब के लोगों की जिंदगी पर भी तवज्जो दी गई। इंतजामी, कानूनी और सियासी निज़ाम में मुस्बत तब्दीलियों ने इलाके की तरक्की में खास किरदार अदा किया। बोस्निया के सूफिया ने एहतराम इंसानियत और कुरान में मौजूद अमन की तालीमात के जरिए मुख्तलिफ मकातब के माबैन फासले को कम करने में कलीदी किरदार अदा किया। खिलाफत उस्मानिया को जब अंग्रेजों ने मुख्तलिफ साजिशों और हथकंडों से कमजोर करवाया तो उसके असरात यूरोप में खिलाफत की शाखों पर भी पड़े और छोटे छोटे खिते एक एक करके खिलाफत से काटे जाते रहे। 1918 में बोस्निया क्रोशियाई सर्बो सैलून रियासत का हिस्सा बना, बाद में जिसका नाम तब्दील करके यूगोस्लाविया रखा गया। यूगोस्लाविया के कमजोर होने के बाद 1 मार्च 1992 में किया जाने वाला रेफरेंडम पर आजादी मुकम्मल हुआ और 3 मार्च 1992 को बोस्निया ने अपनी आजादी का ऐलान किया, जिसे आलमी सतह पर तस्लीम कर लिया गया और इसी तरह बोस्निया आजाद मुमलिकत के तौर पर वजूद में आया। आजादी के बाद बोस्निया ने काफी तेजी से तरक्की की, जिसके लिए मुख्तलिफ मुस्लिम और गैर मुस्लिम ममालिक और दूसरे बड़े आलमी इदारों की काफी काबिल सताइश हैं। तो दोस्तों, ये थी यूरोप में वाक़ मुस्लिम मुल्क बोस्निया और हर्ज़गोविना की शानदार और दिलकश सरजमीन की खूबसूरत सैर, जो इनकलाबी और बहादुर कौम की दास्तान को बयान करती है। उम्मीद है आपको ये सैर पसंद आई होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट्स में अपनी कीमती राय का भी इजहार कर दें। अल्लाह निगहबान।